وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرزت به يا مولاي يا أبا عبد الله برائے خوشنودی سیدنا و مولانا ابوالفضل عباس علمدار و شہزادی سکینہ بلندتر صلوات عزاداران امام، سب سے پہلے تو میں آپ سب کی بارگاہ میں شہزادی کا پرسہ پیش کرتی ہوں۔ سید سجاد کے تنہائی کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات سید سجاد تنہا ہو گئے۔ عزاداران امام، موضوع مجلس آپ سب تمام احباب پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ بی بی سکینہ اور سکہ سیدہ سکینہ، مولا کے ذات پہ صلوات پڑھے تاکہ میں بات شروع کروں۔ عزاداران امام، جو خاندانی درزی ہوتے ہیں نا، خاندانی درزی، کچھ بڑے بڑے اور اعلیٰ خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے درزی مخصوص کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ خاندانوں نے، بڑے بڑے خاندانوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنے درزی مخصوص کیے ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ کبھی کسی اور کو ہم اپنا کام نہیں دیں گے۔ پھر وہ جو درزی ہوتے ہیں، میں عام طور پہ بات کروں دنیا کی، پھر وہ جو درزی ہوتے ہیں، پھر وہ ان کی ایک بڑی ہی خاص بات ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں، کام مکمل کرنے کے بعد جو بچا ہوا کپڑا ہوتا ہے نا، وہ کرتے میں رکھ کر اور واپس کرتے کہ یہ جناب آپ کا بچا ہوا ہے اور یہ ہم آپ کو لوٹا رہے ہیں۔ شہر تھا، عید کا دن تھا، شہزادے آئے سیدہ کے پاس۔ سیدہ کے پاس شہزادے آئے اور آ کے فرماتے ہیں اماں کل عید ہوگی اور ہمیں نیا لباس چاہیے۔ شہزادی نے بچوں کے ماتھے پہ بوسہ دیا، مسکرا کے ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھ کے فرمایا بیٹا آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اور یہ میری وہ شہزادی ہیں، وہ آقازادی ہیں جو صدیقہ ہیں۔ عزاداران امام، ایک تو ہوتا ہے کہ سچ بولنا، جو بات ہو اور پھر اس کے متعلق کچھ بولنا۔ بی بی وہ ہستی ہیں کہ جو فرما دے وہی سچ ہو جائے۔ بی بی وہ ہستی ہیں جو وہ فرما دے بلا شبہ تحقق پاتا ہے۔ بی بی وہ ہستی ہیں کہ جو وہ ایک بار ارادہ کر لے پھر وہ ارادہ اللہ کا ارادہ بن جاتا ہے، پھر اسے پورا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بی بی نے فرمایا آپ کے لباس درزی کے پاس ہے۔ اگلا دن ہوا، آپ سب احباب جانتے ہیں، دق الباب ہوا، بی بی فضہ دروازے پہ جا کے پوچھتی ہیں دروازے پر کون ہے؟ آواز آئی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ کپڑے لیے، اب شہزادے گھر میں ایک تخت کے لیں، جیسے میز کے لیں، اس تخت کے پاس شہزادے آئے اور دونوں شہزادوں نے اپنا یوں لباس کھولا۔ جب دونوں شہزادوں نے لباس کھولا نا، کچھ لباس امام حسن کے کرتے سے آیا، کچھ لباس امام حسین کے کرتے سے آ کے اس تخت پر نیچے گرا۔ جب وہ لباس اس پہ نیچے گرا، شہزادوں نے لباس زیب تن کیا، سیدہ کے پاس آئے، اماں ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ بی بی فرماتی ہے ماشاءاللہ آپ باہر جائیے، نانا جان آپ کا انتظار فرما رہے۔ شہزادے رسول خدا کی جانب سے چلے گئے۔ عزاداران امام، وہ تخت پہ بچا ہوا لباس، وہاں شہزادی قریب آتی ہیں، امام حسن کے کرتے کا بھی بچا ہوا ٹکڑا اٹھایا، امام حسین کے کرتے کا بھی بچا ہوا ٹکڑا اٹھایا اور بڑے پیار سے دونوں کو ملا کے ایک کرتا تیار کر دیا۔ عزاداران امام، مولا حسین شہنشاہ فرماتے ہیں کہ ابوالفضل ہماری وحدت کا نام ہے۔ ہم بات دیکھیں، میں نے شروع سے شروع کی ہے، ابوالفضل ہماری وحدت کا نام ہے۔
तैयार करती नहीं, बड़े प्यार से खुद ही लिबास तैयार किया, खुद ही लिबास को चूमती रही, कभी आंखों से लगाती नहीं। या एक मर्तबा शहजादी आलिया को करीब बुलाया, शहजादी आलिया को करीब बुलाया, पास बिठा के लिबास बीबी के हवाले करके फरमाती हैं, आलिया अम्मा नहीं होंगी, आपका एक भाई आएगा, ये लिबास देना और कहना अम्मा ने सलाम कहे हैं, और कहना कि अम्मा ने नाम भी अब्बास रखा है, मेरी तरफ से नाम है, नाम भी अब्बास रखना और ये लिबास भी पहनाना। अज़ादारान इमाम, बस वो दिन था कि इस घर में मौला अब्बास शहंशाह का इंतजार शुरू हो गया, हमारा भाई आएगा, हमारा भाई आएगा। अम्मा इंतजार करती रही, हमारा भाई आएगा। इमाम हसन कभी बार बार उस कुर्ते को देखते थे, एक दिन आएगा मेरा गाजी पहनेगा। कभी इमाम हुसैन देखते थे, कभी बहनें कहती थी अल्लाह जाने अम्मा का इंतजार कब मुकम्मल होगा। अम्मा की बड़ी हसरत थी। या एक दिन बस वो घड़ियां इंतजार की तमाम हुई कि अमीर अल-मोमिनीन जनाब अकील की जानिब गए, जनाब अकील की जानिब गए और फरमाया कि अकील, मैं चाहता हूँ कि किसी बहादुर कबीले से, किसी बहादुर कबीले की खातून, किसी बहादुर कबीले की मस्तूर से अक्द करूँ, तुम मुझे बताओ। अब अमीर अल-मोमिनीन ने क्यों फरमाया? वो अमीर अल-मोमिनीन के जो इमाम हैं तमाम अकील का ध्यान दिला रहे थे कि जैसा मेरा अब्बास हो, जैसा अलमदार हुसैन हो, वैसा ही सफीर हुसैन हो। अमीर अल-मोमिनीन शहंशाह जनाब अकील मिलकर ख्वास्तगारी के लिए जनाब हज़ाम के घर गए। जब घर गए और ख्वास्तगारी की गई, जनाब हज़ाम ने पूछा कि हाँ भाई, किसके लिए, किसका रिश्ता लेके आए हो? अल्लाह अकबर की सदाओं से घर गूंज उठा, नारे तकबीर की सदाओं से घर गूंज उठा, सलवात से घर मुअत्तर हो गया कि जब नाम आया अली इब्न अबी तालिब। घर सलवात के नूर से मुनव्वर हो गया। ये जनाब हज़ाम बीबी की मर्जी पूछने के लिए जा रहे थे बीबी उम्मुल बनीन के पास, या जाके उन्होंने मंजर देखा कि बीबी अपनी वालिदा से कुछ ख्वाब बयान कर रही थी। फरमाती अम्मा, मैंने एक ख्वाब देखा। कहा अच्छा बताओ क्या देखा? कहा अम्मा, मैंने ख्वाब देखा है मैं एक बाग में बैठी हूँ जहाँ हरे भरे दरख्त हैं, नहरें बह रही हैं, बड़ा हसीन सा बाग था। या एक मर्तबा मैंने देखा कि आसमान पे चांद इतनी ज्यादा रोशनी से चमक रहा था, इतना रोशन चांद था कि मैंने इससे पहले इतना रोशन चांद कभी नहीं देखा। अम्मा, मैं अभी गौर ही कर रही थी, तख्लीक़ खुदा को देख रही थी, अल्लाह की कुदरत को देख रही थी कि आसमान बगैर सतून के इतनी बुलंदी पर कायम है। मैं देख ही रही थी कि इतने में वो चांद मेरे करीब आने लगा। अम्मा, अभी मैं हैरत में थी कि चांद आके मेरी गोद में आया, और जैसे ही वो मेरी गोद में आया मेरा दिल मसरूर हो गया, और उसके साथ साथ 3 सितारे भी मेरी गोद में आ गए कि जिन्होंने मुझे खुश कर दिया, जिनसे मेरा दिल मसरूर हो गया। बीबी ने, सैयदा के वालिदा ने सैयदा के माथे पे बोसा देके फरमाती हैं, हाँ बेटा, आपका ख्वाब सच्चा है, अनकरीब आपका अक्द एक अजीम हस्ती से किया जाएगा। कहा अम्मा, मुझे ख्वाब में हातिफे गैबी की आवाज भी आई थी, उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझसे खिताब किया था कि ए फातिमा, आपके लिए खुशखबरी है, रोशन चांद और 3 सितारों की, जिनके बाबा वो होंगे जो पैगंबर के बाद सब पर सरदार हैं। कहा मेरे
शहजादी आपका ख्वाब बिल्कुल सच्चा है। अज़ादारान इमाम बीबी का अक़्द हुआ, सैयदा के घर में आई और इतनी वफा सैयदा उम्मुल बनीन की कि जब सैयदा की मौजूदगी में इस घर में आती थी ना अज़ादारान इमाम, तो दीवारों का सहारा ले लेके आती थी। या एक दिन ये मंजर सैयदा ने मौला अमीर से बयान किया, फरमाया या अबुल हसन, मदीने की तमाम मस्तूरात मुझे सलाम करने के लिए आती हैं, पर जैसे उम्मुल बनीन आती है वैसे कोई नहीं आती। तो वो कैसे आती हैं? तो वो दीवारों पे सहारा ले लेके आती हैं। मैंने एक दिन कहा, उम्मुल बनीन तुम सहन से चल के आया करो। कहा नहीं बीबी, इस सहन में आपके कदमों के निशान है, आपके कदम पे मेरा कदम आ जाए, कहीं वफा में फर्क ना आ जाए। जैसे उम्मुल बनीन आती थी, आज उस घर में शहजादी ज़ौजा अमीरुल मोमिनीन बन के आई। इंतजार की घड़ियां पूरी हुई अज़ादारान इमाम। एक रात अमीरुल मोमिनीन के घर में ऐसी आई जब मगरिबैन के वक्त मौला अमीर बीबी उम्मुल बनीन के पास आए, फरमाया कि आज बाद सलात मगरिबैन, सलात से फारिग होने के बाद आप अलियुल अज़ीम की तस्बीह कीजिएगा और इस तस्बीह को लम्हे भर के लिए भी कता ना कीजिएगा। अलियुल अज़ीम, अलियुल अज़ीम, अलियुल अज़ीम आपने दोहराते ही रहना है। आज सलात मगरिबैन तमाम करके बीबी ने तस्बीह करना शुरू की, अलियुल अज़ीम, अलियुल अज़ीम, अलियुल अज़ीम। ये तस्बीह करना थी कि हालात बदल गए, माहौल बदल गया। बीबी फरमाती हैं कि सफ़ेद बादलों ने मुझे घेर लिया, कि एक बादल मेरी सवारी बन गया। अब मौला हुसैन शहंशाह का फरमान याद रखिएगा कि अबुल फजल हमारी वहदत का नाम है। बीबी फरमाती है एक बादल मेरी सवारी बन गया। मैं जैसे जैसे अलियुल अज़ीम पढ़ती जा रही थी, वो बादल में मजीद बुलंद होता गया, मजीद बुलंद होता गया। मैं अलियुल अज़ीम पढ़ती गई, वो बुलंद होता गया, यहाँ तक कि मैं अर्शे इलाही को पार कर गई। पहला, दूसरा, तीसरा। जब मैं 7वें आसमान पे पहुंची ना, मैंने देखा मेरे सामने सैयदा ज़हरा खड़ी है। मेरे सामने सैयदा ज़हरा खड़ी है और मेरे सामने रसूल खुदा से लेकर इमाम ज़माना तक तमाम हस्तियां खड़ी हैं कि मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि जो नूर था मासूमीन का। यहाँ मैं रुक के एक बात, नूर जो होता है ना वो बस नूर होता है, नूर के अनवार नहीं होते। अनवार जमा को कहते हैं ना, ये एक लफ्जी तौर पे जमा बन गई नूर और अनवार। दर हकीकत नूर के अनवार होते ही नहीं है, जमा होती ही नहीं, क्योंकि नूर तो नूर होता है। अनवार तब होंगे, जमा तब होंगे तो मुख्तलिफ होंगे ना। जनाब ये रसूल खुदा का नूर है, ये मौला अमीर का, ये इमाम हसन का, ये इमाम हुसैन का, ये अनवार बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता, वो एक ही नूर है जो कभी अली बन के आया, कभी हसन, कभी हुसैन, कभी मुस्तफा। मैंने देखा कि इमाम ज़माना मालिक बक़ियतुल्लाह का नूर इमाम हसन अस्करी में मुंतकिल हुआ। इमाम हसन अस्करी का इमाम नकी में, इमाम नकी का इमाम तकी में, इमाम तकी का इमाम रिज़ा में, इमाम रिज़ा का इमाम काज़िम में, इमाम काज़िम का नूर सादिक़ आले मोहम्मद में मुंतकिल हुआ। सादिक़ आले मोहम्मद का नूर मालिक बाक़िरुल उलूम के नूर में मुंतकिल हुआ। मौला का नूर सैयद साजिदीन में मुंतकिल हुआ। सैयद सज्जाद का नूर अबा अब्दुल्लाह में, अबा अब्दुल्लाह का नूर अबा मोहम्मद में, अबा मोहम्मद का नूर अबुल हसन में, अबुल हसन का पैगंबर आज़म है। और ये जब सारे अनवार बाहम मिल गए, एक हो गए, वाहिद हो गए, तब ज़हरा की आवाज आई, उम्मुल बनीन अब्बास ले जाओ, मैंने अब्बास तुम्हें तोहफा दिया। अज़ादारान इमाम अबुल फजल सैयदा ज़हरा के फर्जंद हैं, सैयदा ज़हरा के पिसर हैं। सैयदा ज़हरा ने फरमाया ना अब्बास मेरा बेटा है। अब अरबी में बेटे के लिए दो लफ्ज हैं, इब्नी भी, वलदी भी। हम जब उर्दू में प्यार में भाई के बच्चों को, बहन के बच्चों को, दोस्त के बच्चों को भी बेटा बोल देते हैं, लेकिन जब अरब में भांजों भतीजों को बेटा बोलना होता है ना, तो कभी भी वलदी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा इब्नी बोलते हैं प्यार में कि बेटे। वलदी वो होता है जो हस्बी नस्बी बेटा हो, वलदी वो होता है जो आपका अपना औलाद हो, आपकी अपनी औलाद हो। सैयदा ज़हरा ने लाड प्यार से नहीं फरमाया था अब्बास इब्नी, ज़हरा ने फरमाया था, सच्ची बीबी ने फरमाया था अब्बास वलदी, वो मेरा बेटा है जो उम्मुल बनीन को तोहफा दिया है।
عباس ولدی. اور سیدہ زہرا وہ سچی بیوی ہیں, وہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں کہ ان کے فرمان کے بعد, ان کے کسی قول کے بعد بحث کی قطعاً گنجائش رہتی ہی نہیں. وہ جو فرما دے وہی سچ ہوتا ہے. اور جب سیدہ ام البنین واپس آئی, امیر المومنین کے صحن میں وہ سواری واپس آئی, تو بی بی ام البنین کا بڑھ کے جس ہستی نے سب سے پہلے استقبال کیا تھا نا, وہ وہی تھی جسے امیر المومنین کی حویلی میں بعد سیدہ زہرا کہا جاتا تھا. دونوں ہاتھ بڑھائے بی بی ام البنین کی جانب, اماں عباس ہمیں دے دیجئے. سیدہ کے دیے ہوئے کرتے سے مولا عباس شہنشاہ کو وہ کرتا لباس زیب تن کیا گیا. عزاداران امام مالک ابوالفضل کا ایک مشہور لقب ہے قمر بنی ہاشم. مشہور ترین لقب ہے میرے پاس. میں ممبر پہ آتی ہوں تو ویسے بھی مولا کا فرمان ہے کہ وقت کو پرواز لگ چکی ہے, لیکن میرے ممبر پہ آنے کے بعد یہ پرواز ذرا 2x پہ چلی جاتی ہے. مولا کا لقب ہے قمر بنی ہاشم. قمر کسے کہا جاتا ہے؟ قمر کہا جاتا ہے پہلی, دوسری, تیسری, زیادہ سے زیادہ چوتھی کے چاند, بس یہاں تک ہوتا ہے قمر. بعد میں اس کے پھر مختلف نام ہیں. بدر بنی ہاشم کہا جاتا ہے, اور پھر وہ شہزادہ علی اکبر کا لقب ہے. مطلب جو فل مون ہوتا ہے اسے بدر کہا جاتا ہے. قمر چوتھی کے چاند تک ہوتا ہے. لیکن یہ جو معاملات ہے کہ حسن سے متعلق نہیں ہے. حسن ابوالفضل اور حسن شہزادہ علی اکبر میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کہ میں نے فرمایا نور کے انوار نہیں ہوتے کہ سب ایک ہی ہیں. لیکن مولا عباس شہنشاہ کو قمر کیوں کہا گیا؟ پہلی کے چاند کی نا کچھ خاصیت ہوتی ہے زاداران امام. جو پہلی کا چاند ہوتا ہے نا اس کا سب انتظار کرتے ہیں. جیسے ہم اپنے گھروں کی بات کریں, آپ کے اور میرے گھروں میں جب رجب کی 29 ہوتی ہے, بے چینی, ہر دل میں انتظار. ہر کوئی, میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہی کہ ٹی وی یا موبائل کھول کے بیٹھ جاتے, یہ زمانہ بھول جائیے. پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں کہ آسمان پہ نگاہیں گڑی ہوئی ہوں, چاند دکھا, نہیں دکھا, دکھا, نظر آیا, قمر نظر آیا, کب آئے گا, کب آئے گا. اور جب نظر آ جاتا ہے اس وقت جو ایک خوشی کی لہر دل کے پار ہو جاتی ہے نا زاداران امام, اس خوشی سے دنیا کی کسی اور خوشی کا کوئی موازنہ نہیں جو خوشی قمر دیکھنے کو آتی. کہ جب کانوں میں آواز آتی ہے نا کہ ہاں شعبان کا چاند دکھ گیا. آج اتنے عرصے بعد ہماری یہ مودت ہے کہ ابوالفضل کے ظہور کے مہینے کا چاند سن کے ہم اپنی خوشی پہ قابو نہیں کر پاتے. اللہ جانے ابوالفضل کے بھائی بہنوں کا دل کتنا مسرور ہوگا جب انہیں پتہ چلا ہوگا عباس آ چکا ہے. اور قمر کو سب کو یوں کر کے دیکھتا ہے. ایسے ہی نہیں مولا عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا. یہ ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کا معصومین نے انتظار کیا ہے, جس کا معصومین, جس کے حسین ابن علی منتظر رہے, جس کے امیر المومنین منتظر رہے, جس کی سیدہ زہرا منتظر رہی ہیں. انتظار رہا ابوالفضل کا اس گھر میں. جب ابوالفضل جوان ہوئے نا, یا سیدہ نے ابوالفضل کے بڑھتے ہوئے قد کو دیکھا, یا سیدہ کے دل کی ٹھارس مزید مضبوط ہوتی گئی. ابوالفضل جوان ہوئے, سورج سے زیادہ روشن چہرہ, چاند سے زیادہ روشن حسین چہرہ, زلفیں شانوں پہ گرتی ہوئی دراز, آنکھیں ستارے سے زیادہ حسین. یا سب گھر والے دیکھ کے کہتے تھے ماشاءاللہ. کبھی حسن آ کے چہرہ چومتے تھے, کبھی حسین چہرہ چومتے تھے. اور عزادارو یہ مصائب کے الفاظ, لیکن اگر آپ اپنے آنسوں پہ قابو رکھیں, یہ ہستی وہ ہستی ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد سیدہ عالیہ نے جسے دیکھ کے زندگی گزاری ہے نا, اسے ابوالفضل عباس کہا جاتا ہے. عزاداران امام, حسن ابوالفضل اور شجاعت ابوالفضل بہت مشہور ہیں. لیکن معصوم کے امام حسین کی ایک حسرت تھی کہ ابوالفضل کا علم دنیا پہ ظاہر ہو. عالم ابوالفضل, دنیا دیکھے عالم ابوالفضل, حسین ابوالفضل کو دیکھ لیا, بہادر ابوالفضل کو دیکھ لیا, اب دنیا اسے دیکھے جو عالم ہے, عالم ابوالفضل کو دنیا دیکھے. عزاداران امام, جب حسین مولا گھر چھوڑ کے مکہ کی جانب آئے نا, اور مکہ کی جانب مولا حسین شہنشاہ کو حج نہیں کرنے دیا گیا. آپس میں بہت تیزی سے مالک ابوالفضل کا خطبہ پڑھنا ہے,
कोशिश करूंगी वक्त में रहते हुए तेजी से आपसे आप तक पहुंचा दूं। जब मौला हुसैन शहनशाह को हज नहीं करने दिया गया ना, उस वक्त मौला इमाम हुसैन शहनशाह का दिल रंजीदा था, दुखा हुआ दिल था मौला हुसैन शहनशाह का। कि इतने में मौला हुसैन शहनशाह ने आसमान की जानिब देखा और आसमान की जानिब देख के फरमाते हैं, परवरदिगारा अंधी हो जाए वो आंखें जो तुझे न देख सके। इतने में एक बंदा कांपता हुआ मौला हुसैन के पास है, मौला तो फिर क्या बनेगा मखलूक का? वो तो इस बात से मुबर्रा है कि उसे देखा जाए, तो कोई नहीं देख सकता। मौला ने फरमाया, हमें देख लो, हमारा चेहरा देखना इबादत है, हमारा जिक्र खुदा है, हमारा चेहरा वजहुल्लाह है, हमें देख लो, हमें देखना गोया अल्लाह को देखना। तो मौला अगर आपको देखना हो तो कहा मेरे अब्बास को देखो। अज़ादारान इमाम, जो इरादतुल्लाह होता है ना, अल्लाह का इरादा होता है कि अल्लाह अभी क्या चाह रहा है, इसका इरादा क्या है। तो आप मासूमीन को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, जो अमल मौला हुसैन अंजाम दे रहे हैं, जो काम मौला हुसैन कर रहे हैं, जो बात इस वक्त मौला हुसैन पूरी फरमा रहे हैं, तो समझ लीजिए यही अल्लाह का इरादा है जो मौला हुसैन आपको करते हुए नजर आए, ये इरादतुल्लाह है। और जो अबुल फजल आपको करते हुए नजर आए, गोया ये इरादा हुसैन है। जो अबुल फजल आपको करते हुए नजर आए, आप समझ आएगा कि हुसैन अपने लिए चाह रहे हैं। इसी वजह से हुसैन मौला को हज नहीं करने दिया, बावजूद इसके अबुल फजल की तलवार नयाम में रही। अबुल फजल चाहते थे जंग हो, लेकिन उन्होंने की नहीं, क्योंकि हुसैन चाहते थे ना हो। आप अबुल फजल मौला इस वक्त अगर कलाम कर रहे हैं, इरादा हुसैन, कोई और काम अंजाम दे रहे हैं, इरादा हुसैन। इस वक्त इरादा हुसैन था कि अबुल फजल कलाम करे, अबुल फजल खुतबा दे। ये वो हस्ती है अज़ादारान इमाम, मौला अबुल फजल मासूम हस्ती है, बिलाशुबा मासूम हस्ती है। और ऐसी मासूम हस्ती है, रसूल खुदा की जिंदगी में 18 जिलहज से पहले मौला अमीर अल-मोमिनीन ने खुतबा नहीं दिया, कभी भी कोई खुतबा नहीं दिया। 18 जिलहज हुई, उसी दिन पहला खुतबा दिया था। हसन मौला ने पहला खुतबा दिया अमीर अल-मोमिनीन की शहादत के बाद, कूफा वालों से खिताब किया। हुसैन मौला ने खुतबा दिया हसन मौला के बाद। अब्बास मौला ने हुसैन मौला की जिंदगी में खुतबा दिया। अमीर अल-मोमिनीन को अलम मिला था रसूल खुदा की जिंदगी में। मौला हसन को मिला मौला अमीर के बाद, इमाम हुसैन को मिला मौला हसन के बाद। मौला हुसैन ने अपनी जिंदगी में मौला अब्बास को अलम दिया था। अब मौला अबुल फजल से मौला हुसैन ने कहा, अब्बास जी मौला हुक्म करें, मैं चाहता हूँ आप काबे की छत पे आए और आके खुतबा दूं। अब मौला अब्बास शहनशाह को पता है कि मेरे मौला का दिल इस वक्त रंजीदा है, मेरे मौला दुखी हैं, इस मखलूक ने मेरे मौला के दिल को दुखाया। बस अज़ादारान इमाम, ये खुतबा सुन लीजिए और मैं मज़हब के मंजिल तक आती हूँ। मौला अबुल फजल अब्बास अलमदार जब काबा की छत पे आए ना अज़ादारान इमाम, दोस्त दुश्मन अपने पराए सबकी नजरें जम गई मौला अब्बास के चेहरे पर। एक तो कदावर ऊपर से काबा की छत पर, या पूरे चाहो जलाल से अबुल फजल फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादारान इमाम, मौला अब्बास शहनशाह की आवाज सिर्फ मक्के में नहीं, वहां तक गई जहां तक मौला अब्बास ने चाहा। क्योंकि मासूम की आवाज वो आवाज होती है कि जो माँ के शिकम में कोई बच्चा उसे भी सुनाई देती है, जो कब्र में हो उसे भी सुनाई देती है। अब अगर मैंने कह दिया ना कि मौला अब्बास शहनशाह मासूम है, तो लोग कहेंगे कि ये जोश खिताबत में, प्यार मोहब्बत में इसने बस कह दिया। दलील रखती हूँ अपनी बात की, और अगर मैं दलाइल के अंबार लगा सकती हूँ, लेकिन वक्त में रहते हुए सिर्फ एक दलील दूंगी, सिर्फ एक दलील। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे मशहूर हैं, आए थे अमीर अल-मोमिनीन के पास। अमीर अल-मोमिनीन के पास आके कहने लगे कि रसूल खुदा के बाद मेरा हक है, चचाजाद हूँ मैं, आप जो है वो मुझे अमामा पहना दें। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया जुल्फकार उठाओ। ठीक है, उठाओ जुल्फकार। जुल्फकार के दस्ते पे हाथ डाला और कहने लगे, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने किसी पहाड़ में हाथ डाल दिया। मैंने जुल्फकार के दस्ते में हाथ तो रख दिया, लेकिन मैंने नस्लों का जोर लगा दिया, मुझसे जुल्फकार उठाई नहीं गई। अबुल फजल ने सिफीन के मैदान में लहरा के फरमाया था, बाबा लोग कहते हैं बड़ी भारी है, अमीर फरमाते बेटा है, हम मासूमीन के लिए नहीं। इस तेजी से मौला मैदान में गए कि वहां मौजूद किसी को भी मौला अब्बास इमाम हसन हुसैन के सिवा नजर ही नहीं आए। तमाम गुलामाने सहाबा ने अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया कि हमने अब्बास को सवार होते तो देखा, आगे जाते हुए हमें नजर ही नहीं आए। ये वो मौजज़ा है जो फकत मासूम हस्ती कर सकती है। ये दलील है। चाहूं तो पूरी सिफीन पढ़ सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल है कि आज मैं खुतबा अबुल फजल सुनाऊं।
अज़दारान इमाम मौला अब्बास शहंशाह काबे के बाम पे आए फरमाया हम्द है। सुनिएगा, अल्लाह की हम्द किस तरह की जाती है, मासूमीन से सीखी हम्द खुदा किस तरह की जाती है। मौला फरमाते हैं हम्द है अल्लाह के लिए, अल्लाह की हम्द के वारिस है आले मोहम्मद। जब भी अल्लाह की हम्द की जाए जिक्र मासूमीन का होता है, जब भी अल्लाह की हम्द की जाए फज़ाइल मासूमीन के पढ़े जाते हैं, जब भी अल्लाह की हम्द करना चाहो जिक्र मासूम हुज्जत अल्लाह की हुज्जतों का जिक्र होता है। अब मौला अब्बास शहंशाह हम्द करें, हम्द है अल्लाह की। हाँ, कहाँ खड़े मौला काबे पर, वो काबा कि जिसे सारी दुनिया सजदा करती, सारी मखलूक सजदा करती, जिसके सामने मखलूक सर को झुका दिए। अब अल-फज़ल ने फरमाया ये काबा, मौला अब्बास फरमाते हैं हम्द है अल्लाह के लिए कि जिसने इस काबे को मेरे मौला हुसैन के बाबा के कदमों से शरफ बख्शा। इस वक्त मौला अब्बास ये भी फरमा सकते थे ना कि अमीर अल-मोमिनीन के कदमों से शरफ बख्शा, इमाम अव्वल के कदमों से शरफ बख्शा, मेरे बाबा के कदमों से। लेकिन मौला हुसैन के लिए वो लोग आए हुए थे जो जिन लोगों ने असलिहा ज़ेरे लिबास छिपाया हुआ था, वो मौला हुसैन के कत्ल के इरादे से आए हुए थे और वो बैतुल्लाह का रास्ता मौला हुसैन पर रोकना चाह रहे थे। दुश्मनी की जा रही थी मौला हुसैन के साथ। इसीलिए मौला अब्बास ने फरमाया हम्द है अल्लाह के लिए कि जिसने मौला हुसैन के बाबा, इसके बाबा के कदमों की बरकत से काबा की किबला बना। तुम मेरे मौला पर बैतुल्लाह का रास्ता रोक रहे हो, हुसैन मौला के बाबा की वजह से आज इसकी जानिब तुम सर को झुकाते हो। और अज़दारान इमाम काबा किबला बना अमीर अल-मोमिनीन की वजह से। लेकिन ये जो 7 तवाफ किए जाते हैं ना, ये भी अमीर अल-मोमिनीन ही की वजह से। लेकिन किए किसने थे? ये किए थे सरकार अबू तालिब ने। ज़हूर अमीर अल-मोमिनीन पर 7 बार काबे का तवाफ करके ज़माने को तवाफ का तोहफा दिया। अमीर अल-मोमिनीन ने काबे को किबला बनाया, ज़माने ने सजदा किया। मौला अब्बास फरमाते तुम इमाम मुत्तकी नेक और पाक लोगों के इमाम पर बैतुल्लाह का रास्ता रोक रहे हो। अब अज़दारान इमाम मौजूद कौन लोग थे? कलमा गो, जाहिर है हज करने जो आए थे हाजी मौजूद थे, कलमा गो थे, नमाजें पढ़ते थे, रोजे कज़ा नहीं थे। दुनिया ने क्या कहती थी? मुसलमान। अब अल-फज़ल ने क्या फरमाया? ओ बदतरीन काफिरो, ओ फाजिरो, तुम इमाम मुत्तकीन पर बैतुल्लाह का रास्ता रोकते हो जो अल्लाह की मखलूक से इसका ज्यादा हकदार है, जो इसके सबसे ज्यादा करीब है। मौला अब्बास शहंशाह फरमाते हैं और लोगों सुनो, अगर अल्लाह का वाज़े हुक्म ना होता, बुलंद असरार ना होते, तो तुम देखते यही घर, अल्लाह का घर, उड़ के मेरे मौला हुसैन के पास आ जाता। लेकिन मेरे मौला हुसैन इसके पास आए और इसे अजमत बख्शी। बेशक लोग हजर अस्वद को चूमते हैं, हजर अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमता है। रसूल खुदा की एक हदीस याद आ रही है। रसूल खुदा ने अमीर अल-मोमिनीन से फरमाया था, अली आप मेरी उम्मत में ऐसे हैं जैसे काबा। हर कोई काबे के पास आता है, काबा किसी के पास चल के नहीं जाता। सारी जिंदगी में अमीर अल-मोमिनीन की सारी ज़ाहिरी हयात तैयबा में कोई ये साबित ही नहीं कर सकता कि अमीर अल-मोमिनीन कभी किसी के पास चल के गए हो। बाकी मखलूक खुदा की बात तो बाद में, खुद मासूमीन, खुद पैगंबर आज़म चल के 13 रजब अमीर अल-मोमिनीन को लेने गए थे। अमीर अल-मोमिनीन किसी के पास चल के नहीं आते, अमीर अल-मोमिनीन के सबके पास चल के आते हैं। और इसी तरह मौला अब्बास शहंशाह फरमाते ये ना समझना हमें काबे की जरूरत है, अगर हम चाहें ये काबा हमारे पास आ जाएगा, लेकिन ये करीमी है मेरे मौला की, खुद काबे के पास चल के आए, काबे को अजमत बख्शी। मेरे मौला अब्बास शहंशाह फरमाते हैं अल्लाह की मशीयत मेरे मौला हुसैन की मशीयत है और मौला हुसैन की मशीयत अल्लाह की मशीयत है। अल्लाह की कसम है, अब अल-फज़ल अल्लाह की कसम खा रहे, फरमाते अल्लाह की कसम अगर ऐसा न होता तो मैं तुम पर इस तरह हमला करता। देखिए मौला अब्बास की हसरत है, देखें, मैं तुम पर इस तरह हमला करता जैसे उकाब उड़ते हुए परिंदों पर हमला करता है। अज़दारान इमाम उड़ते हुए परिंदे उकाब के लिए क्या होते हैं? लम्हे भर एक हमले की देर होती है। मौला अब्बास फरमाते तुम्हें माने पड़ा कि इकट्ठे हो गए हो, तुम्हें माने पड़ा कि तुम तादाद में ज्यादा हो। और लोगों सुनो, अगर मेरे मौला एक बार मुझे आंख का इशारा कर देना सुबह महशर तक, पूरी दुनिया भी मेरे मौला हुसैन के दुश्मन बन जाए, अब्बास सबके लिए अकेला काफी है। मैं तुम पर इस तरह हमला करता जैसे
میں چیٹ پھاڑ دیتا ہے. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جلدی جلدی پڑھ. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے لوگوں سے خیانت کر رہے ہو جو بچپن ہی سے موت سے کھیلتے ہو. کس کے لیے زیر لباس اسلحہ چھپائے ہوئے ہو؟ کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ معصوم وہ ہوتے ہیں جو صرف سامنے نہ دیکھے. معصوم اسے کہتے ہیں جس معصوم کا لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک نہیں ہوتا. جیسے وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کس کے لیے زیر لباس اسلحہ چھپائے ہوئے ہو؟ کس سے ڈرا رہے ہو؟ ہم وہ ہیں جو بچپن ہی سے موت سے کھیلتے آئے ہیں. ہاں زداران امام, یہ بھی مولا عباس کا ایک فرمان ہے اور اس پہ بھی دلیل سن لیجیے. منظر بتاتی ہوں. امیر المومنین 3 دن کے تھے, اکلا اجگر کو چیر کے رکھ دیا تھا. عباس مولا فرماتے ہیں کہ ہم بچپن ہی سے موت سے کھیلتے ہیں. کیا عالم ہوگا ہماری بہادری کا کہ جب ہم عالم شباب میں ہوں. اور تم لوگ نبی کا کلمہ پڑھ کے فرزند رسول کے قتل کا ارادہ کرنے, کس کے کہنے پہ؟ یزید ملعون کے کہنے پر نا. مولا فرماتے کیا موازنہ ہے خاندان یزید کا خاندان رسالت سے؟ ایک طرف وہ ہے جو شراب پینے والے ہیں, ہم وہ ہیں جو حوض کوثر کے مالک ہیں. وہ ہیں کہ جن کا گھر لہو لہب ہے, سارے جہان کی نجاستوں کی آماجگاہ ہے. اور ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں وحی اور قرآن ہے. ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں آیات قرآنیہ ہیں. مولا عباس شہنشاہ فرماتے ہیں تم لوگ اسی غلطی میں پڑ گئے ہو جس میں قریش پڑ گئے تھے. جس غلطی میں قریش پڑ گئے تھے, ان کو یہ تھا, غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہم رسول خدا کو قتل کر لیں گے, ہم رسول خدا پر حملہ کریں گے, قتل کر دیں گے. اور غدیر کے بعد, ہاں غدیر کے بعد کلمہ گرو نے, غدیر کے بعد تو سب ہو چکا نا, کلمے بھی ہو چکے نا. غدیر کے بعد رسول خدا پر 12 جان لیوا حملے ہوئے تھے, 12 جان لیوا. مولا عباس شہنشاہ فرماتے ہیں تم لوگ اسی غلطی میں پڑ گئے ہو جس غلطی میں قریش پڑ گئے تھے. وہ رسول خدا کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے رکھتے تھے, لیکن میرے بابا امیر المومنین کے ہیبت و جلال کے سامنے ان کی ایک نہ چل سکے. کیسے ممکن ہے تمہارے لیے قتل ابا عبداللہ جبکہ فرزند امیر, فرزند مصطفیٰ کی حفاظت پر مامور ہے, حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اب الفضل بتا رہے میں کون ہوں, حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں اس کا راستہ بتاتا ہوں. ہمت ہے نا, میرے قتل کی کوشش کرو اگر ہمت ہے تو. یعنی ابو الفضل یہ بھی بتا رہے معصوم کے ایک ایک فرمان کے 70,000 ظاہری و باطنی مطالب ہوتے ہیں. وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی عزاداران امام, ورنہ مولا عباس شہنشاہ کی عطا ہے, میری کوئی اوقات ہے, ابو الفضل کی عطا سے صبح تک اس خطبے کی تشریح ہو سکتی ہے. مولا ابو الفضل فرماتے ہیں اگر ہمت ہے تو, یعنی ان میں ہمت نہیں, وہ ڈرے ہوئے اسی ہستی سے. مولا فرماتے ہیں ہمت ہے میرے قتل کی کوشش کرو, میرا سر تن سے جدا کرو تاکہ تم اپنی مراد پا سکو. آگے مولا عباس شہنشاہ کے الفاظ سننے سے پہلے ایک بات سن لیجیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ معصوم کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے اور معصوم منع کرتے تھے بد دعا دینے سے. ابو الفضل فرماتے ہیں اللہ تمہاری آبا و اجداد اور اولاد کو تباہ کرے, اللہ تمہیں کبھی تمہارے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے. اپنے قاتلوں کو جو قتل کا ارادہ رکھتے تھے یا قاتلوں کی حمایت کرتے تھے, معصومین نے انہیں بد دعائیں دی ہیں, تاریخ گواہ ہے. سیدہ شریقۃ الحسین کا خطبہ تو اتنا مشہور ہے, جس کسی کتاب میں بھی تاریخ لکھی جاتی ہے, کربلا و بعد از کربلا کے حالات لکھے جاتے ہیں, مقتل کی کتابوں میں سیدہ کا خطبہ موجود ہے, اور اس خطبے میں واضح طور پہ موجود ہے کہ سیدہ نے یزید ملعون کو بد دعا بھی دی تھی. اور کبھی مولا سجاد نے نہیں فرمایا تھا کہ بد دعا نہ دی, سیدہ نے بد دعا دی تھی, ہر معصوم نے دی ہے. شروع کرتے ہیں وہ اللہ کی حمد سے اور خطبے کے اختتام پر اپنے دشمنوں کو بد دعا دیتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تمہارے آبا و اجداد کو اولاد کو تباہ کرے, اللہ تم پر لعنت کرے, تم پر, تمہارے آبا و اجداد پر اور تمہاری اولاد پر. اور عزاداران امام مولا عباس شہنشاہ جب یہ خطبہ مکمل کر کے واپس آئے نا, سکتہ چھا گیا تھا مکے میں. جو حسین مولا کے قتل کا ارادہ کرنے آئے تھے ان کے دل سینے میں ہل کے رہ گئے تھے. حسین مولا کے رنجیدہ دل سے سکون کی ایک لہر گزر گئی. یا حسین مولا نے گلے لگا کے چبوسے دینا شروع کر دیے. مولا عباس کو سینے سے لگایا, حسین کے دل کو قرار آیا, کہاں عباس آؤ چلو کربلا جی. عزاداران امام, رسول خدا رسول خدا کی شانوں پر
मोहरे नबूवत होती थी। आइम्मा इत्तेहाद के शानों पर मोहरे विलायत होती थी। हाँ, लाइट्स ऑफ कर दो। मालिक अबुल फजल के शानों पर भी कुछ निशानात थे। जब मौला अब्बास शहनशाह का ज़हूर हुआ था ना ज़दारा इमाम, मौला हुसैन शहनशाह ने मौला अब्बास को सीने से लगाया और सीने से लगा के मौला अमीरुल मोमिनीन के पास आए। आके फरमाते हैं, बाबा, हाँ हुसैन, बाबा मैं जब भी अपने भाई को गले लगाता हूँ ना, मैं जितना खुश होता हूँ, जितने मेरे दिल में खुशी आती है, मेरी आंखें आंसुओं से तर हो जाती है, मैं गिरिया करना शुरू कर देता हूँ। बाबा इसकी क्या वजह है? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, हुसैन, जब तुम्हारा ज़हूर हुआ था ना, जिब्राइल महज़र नामा लेकर आया था, उसमें शहदा के नाम लिखे हुए थे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ था कि अबा अब्दुल्ला सैयदुल शहदा हैं, और अबुल फजल के लिए लिखा हुआ था कि वो अलमदार करबला है। हुसैन, जरा अब्बास के शानों से कुर्ता हटाना। मौला हुसैन ने कुर्ता हटाया तो मौला के शानों पे दो निशानात थे। मौला हुसैन ने फरमाया, बाबा ये निशान कैसे? तो सुनोगे, एक निशान है अलम का जो खून में तर हो जाएगा, एक निशान है मशकीज़ा का जो अबुल फजल के खून से रंगीन हो जाएगी। अज़ादारों, मौला अबुल फजल इस दुनिया में ज़ाहिर होते ही मश्क का निशान साथ लेकर आए थे। अबुल फजल की जान थी तो मश्क सकीना में थी। अज़ादारा ने इमाम करबला के मैदान में तीरों पे तीर बरसते रहे। अबुल फजल पे कहीं से तीर, तलवारें, नेज़े अबुल फजल पे जालिम बरसाते थे, लेकिन अबुल फजल की निगाहें जमी थी मश्क ज़मीन सकीना में। हालात ये हो गए कि अबुल फजल के आंखों में भी तीर लगाए गए। एक तीर नहीं था मेरे मौला की आंख में। मीर अनीस लिखते हैं कि मुंह से कोई ये तकरीर निकाले, एक आंख से शबीर ने 10 तीर निकाले। अज़ादारा ने दांतों में मश्क को संभाले हुए अबुल फजल खैमे की जानिब रवाना होने लगे। एक तीर आके मश्क सकीना में लगा, गोया वो तीर अब्बास के कलेजे में लगा। अज़ादारा ने जब मौला अब्बास जमीन पे आए, शिमरे मलऊन ने ऐलान किया, जिसको अली से बदला लेना है वो आ जाए। अली का अली बेटा जमीन पे आ गया है और उसके हाथ नहीं है। अज़ादारा ने एक जुमला शहादत का, मौला हुसैन जब खैमा में मश्को अलम लेके आए, अलमदार ना लेके आए, सैयदा शरीकतुल हुसैन ने पूछा, मेरा अब्बास कहाँ है? मौला हुसैन ने फरमाया, आलिया कासिम इस काबिल था, मैं टुकड़े जमा करके ले आया। मैं अबुल फजल को हाथ लगाता था, वो बिखरता जाता था, मैं अब्बास ला न सका। बीबी सकीना ने पूछा, बाबा जान मेरे चचा कहाँ है? मौला हुसैन ने महसूस किया सकीना सुन नहीं पाएगी। मौला हुसैन ने फरमाया, बेटा आप जानती है ना आपके चचा कितने कदावर हैं, आपके बाबा ज़ईफ हो चुके हैं, मैं अबुल फजल को नहीं ला सका। या बीबी सकीना ख्याल में बीबियों की जानिब गई और रोके फरमाती है, बीबियों मेरी मदद करो, मैदान से चचा को ले आओ, मेरे बाबा अब ज़ईफ हो चुके हैं।
अल्लाह इमाम सैयदा सकीना जब शाम के रास्ते में थी ना, आज़ादार इमाम बीबी पे सितम होता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ये उमर साथ मलऊन ऊंट के चेहरे पर ताजियाने मारने लगा। जब इसने ऊंट के चेहरे पे ताजियाने मारे, शिमरे मलऊन इसके करीब आके कहने लगा, तुम्हें पता नहीं जानवर अपने मुंह से अल्लाह का जिक्र करते हैं, तुम ऊंट के मुंह पे क्यों मार रहे हो? जब बीबी सकीना ने ये देखा ना, जख्मी कदमों से सैयद सज्जाद के पास आई। सैयद सज्जाद का दामन पकड़ के फरमाती है, भैया भैया फिर ये मेरे चेहरे पे क्यों मारते हैं? ये मेरे चेहरे पे ताजियाने क्यों मारते हैं? भैया सैयद सज्जाद फरमाते, हाँ सकीना भैया ये ताजियाने तो मारते लेकिन बाद में एक ऐसा ताना देते हैं जो ताजियानों से ज्यादा मेरे दिल को जख्मी करता है। कहा अच्छा सकीना बताओ। बीबी फरमाती है, भैया ये ताजियाने तो चेहरे को जख्मी करते हैं ना, लेकिन इनके ताने मेरे दिल को जख्मी कर जाते हैं। ये लोग ताने दे दे के कहते हैं, बुलाओ अपने चचा अब्बास को जिसके सहारे पर तुमने मदीना छोड़ा था। भैया भैया ये रास्ते में बार बार अबुल फजल मेरे चचा जान की बाजुओं को नेज़े पे बुलंद कर करके मुझे दिखाते हैं। हाँ भैया सज्जाद जब बाबा खूब आलम लेके आए थे ना, उसी वक्त मेरे दिल ने मुझे कह दिया था, सकीना अब जिंदगी में अंधेरों के सिवा कुछ नहीं बचा। आज़ादाराने इमाम सैयदा सकीना जिंदान के दरवाजे पर बैठती थी। जिंदान के दरवाजे पर बैठ के बाबा और चचा को रोती थी। सिर्फ रोती नहीं थी बीबी, बल्कि जिक्र करती थी, करबला बताती थी बीबी। यहाँ तक के बीबी की शहादत के बाद मस्तूरात जिंदान के दरवाजे पे आके सैयद सज्जाद से पूछती थी, वो बच्ची कहाँ गई जो अपने बाबा और अम्मू की बातें बताती थी। जब तक जिंदा रही बीबी सकीना शाम में करबला बताती रही। आज़ादाराने इमाम एक रात ऐसी आई शाम के जिंदान में जब बीबी सकीना ने आंखें बंद कर ली थी, सोई नहीं थी बीबी। शाम गरीबा के बाद बीबी सकीना शहादत तक नहीं सोई, बस आंखें बंद कर ली थी। अब सामने मंजर क्या देखती है, भैया अकबर भी खड़े हैं, बाबा भी खड़े, चचा जान भी खड़े, शहजादा कासिम भी खड़े, बाबा की गोद में अली असगर भी है, और सब कह रहे हैं, सकीना आज हम तुम्हारे बगैर उदास हो गए, सकीना हमारे पास आ जाओ, असगर का दिल बहलाओ। सकीना सकीना तुम्हारा चचा तुम्हारी सगाई करने के लिए बेचैन है। या इतने में बीबी ने आंखें खोली, दाएं बाएं देख के फरमाती है, पुप्पी अम्मा अभी तो बाबा यहाँ थे, मेरे बाबा कहाँ चले गए? इतना सुनना था या सैयद सज्जाद ने दिल को हाथों से थाम लिया। फरमाती है, बाबा आए थे, बाबा मुझे फरमा रहे थे, सकीना मैं तुम्हारे बगैर उदास हो गया हूँ, मेरे पास आ जाओ। कहा अच्छा सकीना। सैयदा शरीकतुल हुसैन ने फरमाया, अच्छा सकीना मेरा भाई आया था। कहा अम्मा बाबा आए थे, तो बाबा चले गए। कहा सकीना आपके बाबा आए और मुझसे ना मिले, आपसे मिलके चले गए। कहा अम्मा बस अब मुझे बाबा मिला दे, बाबा फिर मेरे सामने कब आएंगे, मुझे बाबा मिला दे। इतना रोई बीबी सकीना, इतना रोई कि मौला हुसैन शहनशाह का सर अक़दस जो इस मलऊन के महल में रखा हुआ था, एक बार इमाम हुसैन के सर ने तश्त से परवाज की और वहां आए जहां यजीद मलऊन था। इमाम हुसैन के सर ने फरमाया, ऐ मलऊन अल्लाह तेरे जिस्म से तेरी रूह को इसी तरह जुदा करे जिस तरह तूने मेरे बच्चों को मुझसे जुदा किया। परवाज की मौला हुसैन के सर ने जिंदान के पास आके फरमाते, आलिया सकीना को बहलाओ। अज़र इमाम हुसैन का सर तश्त में वापस आया। यजीद मलऊन ने सिपाही को बुला के कहा, तश्त जिंदान में ले जाओ। इस मलऊन ने बड़ी बेदर्दी से जुल्फों से मौला हुसैन के सर को थामा। अब जो आते हुए सैयद सज्जाद ने देखा, रो के फरमाते, उठाना नहीं आता था मुझे बुला लिया होता, कोई बालों से भी बला पकड़ता है। मेरे बाबा का एक बाल टूटता था, मेरी दादी कितने कितने दिन तक गिरिया करती थी। जिंदान में सर हुसैन आया, जिंदान में आवाजें
बुलंद हुई, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मौला सज्जाद ने सर हुसैन बीबी सकीना के सीने पे रखा। सैयदा सकीना ने देखा हालत क्या है, दाएं की जुल्फे बाएं, बाएं की जुल्फे दाएं, गर्दन पे खंजर के निशान, चेहरे पे तमाचों के निशान। जानते हैं ये तमाचे मौला हुसैन को कब लगे? जब हुसैन अब्बास के टुकड़े चुन रहे थे ना, जालिम मार मार के कहते थे मारो अब उसे बचाने अब्बास नहीं आएगा, मारो अब इसे बचाने वो नहीं आएगा जिसने कहा था इसे कत्ल करना है तो पहले मेरा सर तन से जुदा करो। चेहरे पे तमाचों के निशान, होंठ पे कटे हुए दंदाने मुबारक पे बबूल की छड़ी पे के निशान। या सैयदा सकीना ने देख के फरमाया बाबा आपकी रीशे अक़दस को खून से खिजाब किसने किया? बाबा बाबा जालिम को आपकी अंगूठी चाहिए थी, उसने आपकी उंगली भी काट दी ना। बाबा जालिम को मेरी बालियां चाहिए थी, बाबा मेरे कान फट चुके हैं। बाबा आप वो जगह ही नहीं रही जहाँ सकीना बालियां पहना करती थी। बाबा बाबा मुझे ऊंट के साथ दौड़ाया गया, मैं चुप रही, फिर बोसे देने लगी, फिर सीने से लगाया। बाबा बाबा मैंने खाना नहीं मांगा, बाबा मैंने पानी नहीं मांगा। बाबा बाबा चचा का आलम खून से तर हो गया। या सकीना की प्यास मिट गई, सकीना की आस मिट गई। बाबा बाबा एक बार मुझे देखे तो सही, हर कोई ये कहता है सकीना तुम ज़हरा की शबी बन चुकी हो। बाबा देखे आपके अम्मा पर कितने सितम हुए। बाबा जालिम भी वही है, वही मैं ज़हरा हूँ। इन जालिमों ने मुझे इतना मारा है, अब मैं दादी की शबी बन गई हूँ। बाबा जब मैं ऊंट से गिरी थी ना, आपकी सकीना की पसलियां टूट गई थी। बाबा बाबा मेरे बाल सफेद हो गए। बाबा इतने दिन मेरे बगैर कैसे गुजारे? मैं रोज आपको सताएं देती थी। हुसैन मौला ने आंखें नहीं खोली, बीबी सकीना बैन करती गई, हुसैन मौला ने आंखें नहीं खोली। या एक मर्तबा सैयदा सकीना फरमाती है बाबा आपको भैया अकबर का वास्ता देती हूँ, एक बार आंखें खोले, मुझे देखें, बताएं आपने कोई 4 साल की बच्ची देखी है जो कमसनी में ज़ईफ हो चुकी हो, जिसके बाल सफेद हो गए हो? इधर मौला हुसैन ने आंखें खोली, इधर बीबी सकीना ने मौला हुसैन के मुंह पे मुंह रख दिया। ले आइए